Welcome all in the new group as you have selected or choose commerce subject. It's very nice and good subject. So many scopes are there from this subject. Today we are taking business studies. Business is a very important word for commerce. In this topic, we are studying how to do business, what are the requirements of business, what type of formalities you will have to do for opening a new setup for business. So many things in concern of the business you can study in this subject. This is the business study NCERT book. You can purchase it from the market, and these are the contents which are covered in your subject. It can be distributed in two parts: foundation of business and corporate organization, finance and trade. In foundation of business, 6 chapters are covered and remaining 6 are covered in the part 2nd. There are number of 12 chapters are there in your syllabus. First part, which is covered under this foundation of business, first chapter is nature and purpose of business. Now, what is business? The term business is derived from the word busy. Thus, business means being busy. बिजी रहना. कहाँ से डिराइव हुआ? वर्ड बिजी से डिराइव हुआ है बिजनेस वर्ड. उसका मतलब क्या होता है? बिजीनेस. बिजनेस refers to an occupation in which people regularly engage in activity related to the purchase, production, sale of goods and services with a view to earning profit. In this business, the person who is doing business, he is engaged in so many types of economic activity. Economic activity means which is related to the activity which is related to the sale and purchase of goods and services in terms of money. Without money, it will not be counted as economic activity. मतलब जो भी एक्टिविटी एक बिजनेसमैन, एक पर्सन जो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, किस चीज़ के लिए करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और प्रॉफिट और मनी अर्न करने के लिए. क्यों? वो अपना लाइवलीहुड बेटरली चला सके. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन दिस वन, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक मीन्स जो इन टर्म्स ऑफ मनी होती है. Non-economic activities are those which are performed on behalf of law of actions in which on behalf of that there is no money. मनी का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है. वो एक्टिविटी कौन सी होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस जो होता है वो टोटली इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड रहता है, जहाँ पे हम कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके बिहाफ पे विल हैव टू पे सम मनी. पैसा देना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है. दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. विशेषताएं. कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है? विशेषताएं. किस चीज़ की? बिजनेस एक्टिविटीज़ की. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज an economic activity. Yes, business is considered to be an economic activity because it is undertaken with the object of earning money or livelihood and not any other sentimental reason. Means वो एक्टिविटी जो ऑन बिहाफ ऑफ मनी या मनी अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हैं कि ये एक्टिविटी करने के बाद मुझे इतना पैसा अर्न होगा तो मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाऊँगा और प्रॉफिट इसमें इतना अर्न करूँगा, वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी काउंट की जाती है.
Okay, so business is an economic activity, that those activity which are uh, occurred or done on behalf of money or for money, for earning profit. Okay, second one is production and procurement of goods and services. Before goods are offered to people for consumption, this must be either produced or procured by business business enterprises. Thus, every business enterprises either manufactured the goods in detail or it acquires them from producers to be further sold to the consumer or users. Goods may be consist of consumable item of daily use such as sugar, ghee, pen, notebook, etc., or capital goods like machinery, furniture, etc. Service may be include like facilities offered to the consumer, business firms and organization in the form of transportation, banking, electricity, etc. बिजनेस में क्या क्या होता है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। यहाँ क्या क्या किया जाता है? गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद में डिलीवर किया जाता है कंज्यूमर की रीच तक। और गुड्स के ही साथ में एक और वर्ड हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सर्विसेज। सर्विसेज आर इनटेंजिबल, गुड्स आर टेंजिबल। गुड्स कौन सा है? डे टू डे लाइफ में जो हम लोग ख़रीदना बेचना करते हैं, मार्केट से ख़रीद के लेकर आते हैं और जो दिखते हैं हमें, वो गुड्स होते हैं। फिज़िकल बॉडी, फिज़िकल एग्जिस्टेंस जिसका रहता है, वो गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। कैपिटल गुड जैसे नॉर्मल लाइफ के गुड्स कौन से हो गए? मैंने अभी एग्जांपल लिया था, शुगर, घी, पेन, नोटबुक, सो मेनी थिंग्स आर जो डे टू डे लाइफ में हम खरीदते हैं। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मशीनरी, फर्नीचर, जो भी इंडस्ट्रियल लेवल पे हम लोग खरीदना बेचना करते हैं, वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आता है। ओके, नाउ द सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है? जो भी हम रेंडर करते हैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये सर्विसेज है, उसके बिहाफ पर हम कुछ मनी, फीस लेते हैं। मनी मीन्स फीस। और वहाँ पे गुड्स के बिहाफ पे क्या होता है? वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स प्राइस। प्राइस जो होती है उसकी एक कीमत होती है। और सर्विसेज की क्या होती है? फीस होती है। सर्विसेज लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए, बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमोबाइल्स का रहता है, या फिर आप मोबाइल का ले लें। ये सब सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बिहाफ पर हमसे पैसा भी लेते हैं। तो दीज आर सर्विसेज। और ये सर्विसेज भी बिजनेस एक्टिविटी में काउंट की जाती है। क्यों? क्योंकि इनके बिहाफ पर बिजनेसमैन आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करता है। थर्ड वन इज योर sale or exchange of goods and services. Directly and indirectly, business involves transfer or exchange of goods and services for value. If the goods are produced not for the purpose of sale, but say for personal consumption, it cannot be for personal consumption. It cannot be called a business activity. Means अगर बिजनेसमैन, एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी आप बना रहे हैं और आप डायरेक्ट किसी पर्सन को नहीं बेच रहे हैं, लेकिन देर इज़ अ सेल। अगर कहीं सेल हो रही है, यू आर फ्रॉम द बिजनेस फैमिली, सो मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द बिजनेस फैमिली। आप भी जानते होंगे कि आप जो प्रोडक्ट, आपके यहाँ पे जो प्रोडक्ट शॉप पे सेल हो रहा है, दैट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय यू, but it is a business activity. बिजनेस एक्टिविटी में काउंट किया जाता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आप करें, डीलर करे, मैन्युफैक्चरर करे, कोई भी करे। ओके, ये सब किस कैटेगरी में आएगा? आपका बिजनेस एक्टिविटी की कैटेगरी में आएगा। अगर आप खुद बना रहे हैं या आपने खुद के कंज्यूमशन के लिए कोई गुड्स बनाया है और उसको सेल नहीं किया है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा।
Okay. Next, our fourth characteristics of business is dealing in goods and services on regular basis. बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो डीलिंग होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है. ऐसा नहीं कि एक बार बना के और छोड़ दिया या एक बार ख़रीद के आपने भूल गए. नो, आप रेगुलर बेसिस पे जब एक्टिविटी करते हैं, कुछ ख़रीदना बेचना करते हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी होती है. जैसे हम मिल्क डेली ख़रीदते हैं, ब्रेड डे टू डे लाइफ में हम ब्रेड भी ख़रीदते हैं. सो मेनी थिंग्स हमारी जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं हम डेली रेगुलर बेसिस पे ख़रीदना बेचना करते हैं. सर्विसेज में भी मोबाइल का अगर रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो हम वापस से रेगुलर बेसिस पे उसको रिचार्ज करवाते हैं. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डील्ड इन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस. फिफ्थ characteristics of business is profit earning. Each and every activity which is treated as economic or business activity, it is for profit motive. जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस एक्टिविटी अगर है तो बिना प्रॉफिट के कोई भी बिज़नेस करना पसंद नहीं करेगा. कोई वेलफेयर करेगा तो वो फिर बिज़नेस एक्टिविटी नहीं हो गई, वो चैरिटेबल पर्पस हो गया. ओके, इफ़ यू आर टेकिंग एज अ बिज़नेस एक्टिविटी, इट इज़ फॉर प्रॉफिट अर्निंग, राइट. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. सी, बिजनेस है, बिजनेस में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका रिटर्न कैसा होगा, वो सर्टेन नहीं होता है. प्रॉफिट कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी होता है, कभी नहीं भी होगा. तो सर्टेनिटी नहीं रहती है, फिक्स नहीं रहता है कि रिटर्न आपका प्रॉफिट कितना होगा या नहीं होगा. तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. नाउ व्हाट यू विल डू, I am sending the PDF of all these notes and characters, natures and business of nature of business. आपको ये करना है कि you are preparing your notes in your copy. One more last characteristics remains, that is element of risk. बिजनेस है तो रिस्क तो रहेगा, बिना रिस्क के प्रॉफिट भी नहीं होगा. प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो रिस्क ज़्यादा लेनी होगा, ज़्यादा उठाना पड़ेगा ना रिस्क. तो दैट इज़ द एलिमेंट ऑफ रिस्क. तो दैट इज़ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. विदाउट रिस्क देयर इज़ नो प्रॉफिट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यू प्रिपेयर योर नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑल the PDF which I am sending to you, right? Bye.